The next topic that we are going to learn in detail today, that's the oxygen transport, right? First is a which one? Oxygen transport, and then we learn CO2 transport, right? Oxygen transport, for that, here one of the graph is given first, right? Somehow it's a S-shaped structure, right? You know S-shaped sigmoid curve, right? So first, how does this graph prepare? On the basis of which factor that we can decide, yes, this much amount of partial pressure of oxygen, so that oxygen can bind with this much hemoglobin, right? So first thing here, that factors, oxygen and hemoglobin, right? You know that alveoli, lungs alveoli, right? So alveoli, in that which blood comes? Deoxygenated. From the alveoli, which things enter? Oxygen. That oxygen binds with what? Hemoglobin. And it will form the compound HbO2. And this HbO2 we call oxyhemoglobin. This HbO2 we call what? Oxyhemoglobin. Clear this thing? Next one. So this oxyhemoglobin formation and dissociation, first we are going to learn. Oxyhemoglobin formation, for that, this compound, oxyhemoglobin compound form at which site? I told you surface name. Respiratory surface. So oxyhemoglobin compound form at the respiratory surface. Now you have to imagine this thing. Okay, over here at the lungs alveoli, oxyhemoglobin form. That oxyhemoglobin, जितना भी रेड कलर है ना, वो सब में कौन से फॉर्मेट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड, राइट? By the way, one thing, hemoglobin, first of all, in that which is the main iron element, iron, right? Next one, that's the iron, and in that the one thing, hemoglobin का as such color है ना purplish है. क्या है? Purplish. But when it reacts with the oxygen, that colors turn into red. समझ में आया? That colors turn into which one? Red color. Clear? So now, first one. So hemoglobin and oxygen, remember, that binds and form oxyhemoglobin compound. So over here at respiratory surface, it forms oxyhemoglobin compound, and then through that systemic arteries, it reach to the which one? Cells. At the cells, ये compound का क्या होगा? Breakdown, dissociation, right? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी ऑक्सीजन उसमें से क्या होगा? लिबरेट, राइट? सो टिश्यू सरफेस ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन आकर, रेस्पिरेटरी सरफेस पे क्या होगा? ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. समझ में आया? रेस्पिरेटरी सरफेस ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, टिश्यू सरफेस oxyhemoglobin dissociation. Understood this thing first? So something should be responsible for that. कि respiratory पे वो favor कर रहे हैं, which creates unfavorable conditions at this site, tissue, right? यहाँ पे compound form हो रहा है तो favor conditions है, and यहाँ पे compound का क्या हो रहा है? tissue surface पे dissociation, meaning unfavorable conditions है. इतना समझ में आया? Sure? पक्का? Tell me. HbO2, right? Oxyhemoglobin compound formed at which surface? That compound dissociate at which surface? Understood? Now the next, so which factors are responsible? Remember this thing, very, very important, this line, this topic. ये line, this line is very, very important for MCQ. NEET के लिए भी, right? For NEET, remember that entire table. Partial pressure of oxygen, CO2, right? When you solve na PYQ, you can come across so many questions which were earlier asked from that topic. Clear? So now, formation के लिए alveoli, पहले ये clear हुआ alveoli, right? Respiratory surface, over there HbO2 form. तो over there oxygen, PO2, partial pressure of oxygen high or low? High. CO2 क्या होगा? Low, right? सेल्स में यू नो जब भी हम वर्क करते हैं, नॉर्मल बैठे हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है, बट हम वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में हीट जनरेट होता है कि नहीं? है ना? सेम थिंग, टिश्यूज, इन दैट सो मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर, हीट जनरेट, टेम्परेचर
इंक्रीज, यहाँ पे वही टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज, रिमेंबर, राइट। सो एट द रेस्पिरेटरी सरफेस एक फैक्टर है PO2, 4 फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल, PO2, PCO2, H+ एंड टेम्परेचर, क्लियर। H+, ये आपकी बुक में अभी बहुत शॉर्ट में दिया, अर्लियर सिलेबस जो था इसमें डिटेल में ये ट्रांसपोर्ट दिया था। HbO2 भी है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सी, यू नो ना, H+ इंक्रीज एसिडिक कंडीशन, दैट्स व्हाई दिस नेम इज गिवन, right? So H+ concentration also matter over here, clear। High PO2, first favorable condition at which surface, for which compound, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं, क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन at respiratory surface, which factors are favorable? So first PO2 क्या होता है, हाई, PCO2, सी, ऑक्सीजन के कंपेयर में बाकी के 3 फैक्टर्स है ना वो रिवर्स ऑपोजिट है, PO2 हाई, PCO2 लो, टेम्परेचर लो, H+ लो, समझ में आया। तो टिश्यू सरफेस पे क्या करना है, अनफेवरेबल, तो रिवर्स कर दो, टिश्यू सरफेस पे ऑक्सीजन, PO2 क्या होगा, PCO2, टेम्परेचर H+, समझ में आया। सो दिस फैक्टर्स रिमेंबर, राइट, partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, H+ and the temperature affect the which one, oxyhemoglobin formation as well as dissociation, understood, sure। ये मेन याद रखना, सिंपल, डिसोसिएशन के लिए है तो क्या लो होगा, PO2, PO2 लो, PCO2 हाई, हाई H+ and high temperature, exactly reverse, clear। last time ये first hemoglobin binds with the oxygen at which surface, and form which compound, oxyhemoglobin compound, right, that now with the help of the blood reach to each and every body cells, oxyhemoglobin compound form at the which surface, which factors favor over there, H+ हाई और लो, आपको बोलते लो, PO2 हाई, टेम्परेचर लो, एंड PCO2 लो, सिंपल, PO2 हाई है, बाकी के कौन से 3 फैक्टर, PCO2, क्लियर। एट द सेम over here, once this HbO2 complex of oxyhemoglobin reach at the which surface, which factors favor for dissociation now, PO2 low, PCO2 H+, and the last one that is temperature, clear, यहाँ तक, sure। now next one, that with the help of this thing one standard graph is given। पहले तो आप सबको ऑक्सीमीटर पता है, कोरोना के टाइम पे फिंगर पे लगा, याद आया है ना, बोलो। H+ concentration over here, H+ is needed, right, low H+ pH यहाँ पे क्या होता है, over here that is very high, here very high, here that will be the reduced one, and that reacts with the, even interact with the CO2 transport also, which one, pH can affect the any reaction, same thing here, अगर फॉर्म करना है pH should be high, here pH should be low, clear। चलिए, एक और भी कंपाउंड होता है, राइट, लास्ट में मैं आपको वो लिखवाती हूँ, मे बी सपोज नीट में आ जाए इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली अब तक नहीं है, बट वन मोर दैट कंपाउंड इज देयर दैट आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर एंड अफेक्ट दैट, क्लियर। सो नाउ फर्स्ट ऑक्सीमीटर, है ना, पता है ऑक्सीमीटर में वैल्यूज आते थे, तो हाँ वैल्यूज आते, तो इन दैट इवन अभी तो स्मार्ट वॉच में भी आता है ना SpO2 लेवल, है ना, so in that S, that's for the saturation, कि कितना ऑक्सीजन बाइंड हुआ है with that hemoglobin, right, so that SpO2 level कितनी वैल्यूज हो तो वो ओके है, बेस्ट है, वो पता है, तो क्या किया, जस्ट 95 एंड अबव, 95 से ज्यादा ही होना चाहिए जनरली, राइट, ऐसा है, राइट, 95 मैक्सिमम है सैचुरेशन लेवल पे, एंड देन
above, it's good. But उससे कम हो रहा है, meaning somehow lungs में alveoli में कुछ damage हो रहा है, that's why gaseous exchange क्या हो रहा है, defect, और ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में यहां तक नहीं आ रहा है. क्लियर, अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, वी कैन से दैट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी. सो सिंपल दैट ऑक्सीमीटर दैट एक्चुअली वर्क्स ऑन दैट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मैकेनिज्म, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है एज वेल एज विच वन, आर्टरी कैपिलरी के फॉर्म में लाएगा एंड द वेनस के फॉर्म में ले जाएगा, राइट, वेन्यूल्स के फॉर्म में. सो लाइट दैट इम्प्लांट, पता है उसके अंदर लाइट होता है, हाँ, तो वो जस्ट डेकोरेशन, ये वो पर्पस से नहीं है, राइट, कि लाइट ब्लिंक होना ऑन ऑफ, नहीं, वो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है एंड कितना एब्जॉर्ब होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसका डिफरेंस वो काउंट करके हमें बताते हैं. उसका प्रिंसिपल डिफरेंट इन दिस वे, राइट. सो ऑक्सीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, स्पाइरोमीटर, राइट. Oximeter for which one? Find out the oxygen level, SpO2, right? Clear this thing. Now, so for that, this is the standard healthy person, adult, right? Uska graph hai. In that, when we see that on x-axis, this is the x-axis. In that 20, 40, 60, 80, 100, partial pressure of oxygen given in mm of Hg. On y-axis given that परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, कि जब अगर हम 20 mmHg दे रहे हैं ऑक्सीजन, तो कितनी दैट बाइंड्स टू हाउ मेनी, दैट्स द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन परसेंटेज फॉर्म. 40 दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 60 दे रहे हैं तो कितना, 80 है तो कितना, 95 है तो कितना, 100 है तो कितना, इन दिस वे. क्लियर फर्स्ट, राइट. सो नाउ सपोज मान लो कि 20 mmHg गिवन, राइट, तो कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ, 20. अंडरस्टूड दिस थिंग. नेक्स्ट वन, सपोज 40 है, देन 60% इन दिस. क्लियर. नेक्स्ट वन यहां पे दैट इज 95, तो 100% सेचुरेशन होता है. 95 mmHg, आई टोल्ड यू 95 और उससे ज्यादा हो तो इट्स अ बेस्ट कंडीशन. So 95 mmHg over there we can observe 100% हमारे बॉडी के जितने भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है all are occupied with transport of oxygen. समझ में आया, राइट. 100%, 100 mmHg भी नहीं, कितना है, 95. यू नो 95 कहीं पाया था क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दैट 95 mm, राइट. 90, 100 तो आ ही नहीं रहा हमारी बॉडी में, समझ में आ रहा है. 95 मैक्सिमम है, with that all hemoglobin molecules saturate with that. क्लियर, श्योर, ये लाइन क्लियर हुआ अंश. नाउ नेक्स्ट वन, बुक में जो एक लाइन दी है वो अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, दैट दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ. दिस ग्राफ कैन शिफ्ट राइट एज वेल एज लेफ्ट. This graph indicates what, oxyhemoglobin formation. Oxygen hemoglobin join ही हो रहा है ना, so this one we call which one, oxyhemoglobin formation. Now this one name given is a which one, oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve. Now understand this thing that मान लो कि ग्राफ और एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इन दिस वे. क्लियर. तो नाउ अगर मुझे 60%, कितना, 60% हीमोग्लोबिन सेचुरेशन लेवल चाहिए विथ ऑक्सीजन, तो कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, जो मैंने रेड लाइन अभी बनाया ना उसके अकॉर्डिंग बताओ. 60 एग्जैक्टली, सी दैट ये 60 है, इतना चाहिए 65 to 70 के बीच में, यस और नो. समझ में आया, राइट. तो पार्शियल अगर ऑक्सी ओवर हियर सैचुरेशन लेवल का, दिस थिंग सिंपल, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन जब राइट साइड पे, दिस इज द विच साइड, राइट साइड, पहले ये याद रखना, बुक में लिख लेना, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. क्लियर. नाउ व्हेन दिस ग्राफ जब स्टैंडर्ड ओवर हियर, देन इट शोज सैचुरेशन. All hemoglobin molecule bind with the oxygen.
When does this graph shifted? तो सिंपल, ड्यूरिंग द विच वन, व्हेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड क्या हो रहा है अभी, ब्रेक. राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड क्या होगा, डिसोसिएशन. मीनिंग व्हाट, कि नाउ द ऑक्सीजन लिबरेट डिसोसिएट फ्रॉम इट. ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिसोसिएट. इन विच वे, ओवर हियर दैट इतने यहाँ पे 60-80 mmHg ऑफ है, राइट. राइट साइड पे यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट. राइट साइड शोज अनफेवरेबल कंडीशन. राइट साइड शोज विच वन, अनफेवरेबल. ये समझ में आता है, राइट साइड शोज व्हाट, अनफेवरेबल. और यही अगर लेफ्ट साइड और थोड़ा आ जाए, राइट, सिर्फ हमारे में 95 बोला है, बट अब देखना 97-98 mmHg प्रेजेंट. 95 पे मैक्सिमम सैचुरेशन होता है. 95 पे मैक्सिमम क्या होता है, सैचुरेशन. बट आप जब ऑक्सीमीटर यूज करोगे ना तो उसमें 97, 98, 99, 100 इतना 100 वो रहा है, बट द विच 199 तक वैल्यूज आते. क्लियर. सो नाउ व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल देन इट शिफ्ट टुवर्ड्स द विच वन, लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, राइट. लेफ्ट साइड विच वन, लेफ्ट साइड मीनिंग आप ये भी अंडरस्टैंड कीजिए. और एक लाइन यहाँ पे इन दिस वे, राइट. नाउ एक हमने ग्रीन के लिए अंडरस्टैंड किया कि अगर मुझे ये 60 के लिए सपोज, राइट. ग्रीन के लिए क्या है, सॉरी मैं मिस्टेक, यहाँ पे ऑलरेडी आई है प्रिपेयर. ग्रीन के लिए अगर मुझे 60% सैचुरेशन चाहिए जो स्टैंडर्ड है, तो ओनली 40 mm ऑफ ऑक्सीजन इज इनफ. यस और नो. रेड के जब PO2 क्या है, लो. समझ में, लो क्यों बोला मैंने, बिकॉज अगर मुझे 60% चाहिए तो कितना सारा PO2 की रिक्वायरमेंट है, कितने, 60 mm ऑफ Hg. कितने, 60 mm of Hg required to saturate this thing, because other factors are also unfavorable in condition. Oxyhemoglobin cannot be able to form during that time. At the same time, अगर फेवरेबल कंडीशन में है और सेम मुझे 60% चाहिए, तो देखो जस्ट 20 mm ऑफ Hg अवेलेबल है ना, सारे फैक्टर्स फेवरेबल है, 20 mm Hg ओनली अवेलेबल है, तो भी 60% सैचुरेशन मिल रहा है. यस और नो, राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस ग्राफ. ग्राफ का कोई डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं दिया है, जस्ट ये दिया है कि राइट साइड अनफेवरेबल में राइट साइड शिफ्ट होगा, फेवरेबल में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. क्लियर. राइट साइड शिफ्ट होना मीनिंग व्हाट, ओवर हियर दैट इट नीड्स जनरली 60% किसमें मिल जाता था हमें, 40 mm of Hg given, then it shows the cell. But अभी क्या है, favorable, that other factors are also not favorable, so that 60 or 65 mm Hg when we give, then it shows what, 60%. So right side shows what, unfavorable condition for dissociation, unfavorable for or favorable for HBO2 dissociation. अदर लैंग्वेज में ये हो सकता है, फेवरेबल फॉर HBO2 फुल फॉर्म डिसोसिएशन. समझ में. एंड वही ग्राफ अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, राइट, कंडीशन सारे वहां पे क्या है, फेवरेबल, विथ इन लो अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ लेस क्वांटिटी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, दैट saturation level is very high. Clear. So left side that shows favorable, that shows the favorable condition for oxyhemoglobin formation. Right side that shows favorable condition but for dissociation of oxyhemoglobin. Clear. Understood. Standard एक दिया है, स्टैंडर्ड से लेफ्ट राइट डिविएट होगा तो राइट साइड में क्या होता है, dissociate. Right side for dissociate, left side for formation, left side for formation, right side for which one, dissociation. बोलिए, clear है, sure, पक्का. Last line in this one, that 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen. पता है हमारे में हीमोग्लोबिन कितना होता है पर 100 ml,
हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट कभी ना कभी तो ब्लड रिपोर्ट करवा ही होगा, उसमें पहले ही हीमोग्लोबिन कंटेंट लिखा होता है, रीड किया है? हाँ, तो कितना होता है भूलिए। हाँ, 12 to 13 राइट नाउ, लाइक द मैक्सिमम जो जनरली मेल्स के लिए होता है 14 to 16 लाइक दैट। तो हम 14 ग्राम सपोज, है ना, 100 ml में कितना होता है 14 ग्राम। 100 ml में 14 ग्राम क्या है हीमोग्लोबिन, एंड वो 40 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है 5 ml, राइट? कितने 5 ml। मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं करने, यहाँ पे दोनों यूनिट्स, एक ग्राम में एक मिलीलीटर में, राइट? रिमेंबर 100 ग्राम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वर्ड यहाँ पे हाईलाइट करके रखना। अगर यहाँ पे 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर दिस मच ऑक्सीजन, तो स्टेटमेंट क्या हुआ रॉन्ग, राइट? सिंपल लॉजिक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ऑक्सीजन, that delivers what CO2, that we will learn in the next part. Clear? 100 ml of oxygenated blood can deliver how much amount of oxygen? 5 ml of oxygen. Understood? Sure, right? Now one word is written over here, that is reversible manner. ये कैसे reversible? Hb plus O2 can form वही ब्रेक हो सकता है कि नहीं? रिवर्सिबल एरो, है ना? At one surface it form, at other surface dissociate. That's why mention reversible manner. Clear? Sigmoid curve समझ में आया? स्टैंडर्ड ग्राफ का दिया है, and every time whether it's a low or high, it somehow looks like a which one? As sigmoid curve, right? Next, one hemoglobin can carry how many oxygen? 4 oxygen, because उसमें 4 आयन होते हैं, जितने आयन एलिमेंट्स उतने ऑक्सीजन, राइट? तो 1 हीमोग्लोबिन में 4 आयन होते हैं, 4 आयन की वजह से 4 ऑक्सीजन को वो ट्रैप कर पाते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? श्योर? बोलो। रिवर्सिबल मैनर इन दिस वन, ऑक्सीजन प्लस Hb टुगेदर HbO2, इसको मैं रिवर्सिबल एरो करके बोल सकती हूँ कि HbO2 also can dissociate into Hb plus O2. No doubts that locations are different, but this thing possible, reversible. रिवर्सिबल एरोस आता है ना, बोले। क्लियर? श्योर? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में कोई डाउट? नो? नाउ वी रीड फर्स्ट फ्रॉम द बुक, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन राइट, देन वी गो फॉर द CO2. चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBCs. Oxygen can bind with hemoglobin in a which manner? Reversible manner, to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry maximum how many? 4 oxygen, 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to which factors? Pressure of oxygen, partial pressure of CO2, hydrogen ions and temperature. Next, टेम्परेचर अफेक्ट करते हो, कैसे करता होगा? एंजाइम्स। टेम्परेचर जब भी आए क्लिक होना चाहिए, विच वन? एंजाइम्स, राइट? नेक्स्ट आर द फैक्टर्स विच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग्स। मेजर फैक्टर कौन सा है? प्राइमरी फैक्टर कौन सा है? प्राइमरी फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फुल पॉइंट है, देखो कॉमा नहीं है ना? तो प्राइमरी फैक्टर अगर कोई पूछे देन ओनली विच वन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. Next, underline a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2. This curve we call oxygen dissociation. Clear? Right side जब shift होता है तो left होता है तो evolution. Now next is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, H+, etc. on binding to oxygen with hemoglobin. Now, in the alveoli, meaning which surface? Where there are high PO2, PCO2, H+, temperature low. These are the factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas in the tissue surface, PCO2, PO2, temperature, tissue temperature high, H+ high. That favor for the dissociation of oxyhemoglobin, right?
This clearly indicates oxygen gets bound to hemoglobin in lung surface and get dissociated at the which surface? Tissue surface. Last line, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological action. Understood this thing, right? Actually, tissues के लिए, tissues को जो blood oxygen मिलता है ना, that is only 5 ml. राइट अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं मैं, आप देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में एंड टिश्यू में सेम है, ब्लड में एंड टिश्यू में सेम है, ब्लड में कितना है ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू में कितना ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है, राइट? सो एवरी 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम ml के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो 20 ml जितना होता है 100 ml में, उसमें से सिर्फ 5 ml किसमें जाता है? टिश्यू. 15 ml, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन रिमेन इन द ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 15 ml ऑक्सीजन तो होता ही है 100 ml में. क्लियर दिस थिंग? अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, सो now we are going to learn about that's the transport of CO2. Before that, one thing that we are belonging to which category? Animal kingdom classification के point. We are what? Okay, chordates में vertebrates पहले and then mammals. Vertebrates कौन से है? Amphibians. Fishes नहीं है? साइक्लोस्टोमेटा वो सर. टेट्रापोडा में कौन आएगा? टेट्रापोडा में कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से क्लासेस? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, राइट? आई टोल्ड यू दैट वन थिंग, राइट? दिस इंफॉर्मेशन जस्ट अगेन नीट में सपोज आए उसके लिए, राइट? आवर लंग्स, right, in which our lungs have always some amount of air remain inside the lungs, right? And one thing, हम forcefully air को lungs में transfer कराते हैं normally that we can breathe. Lungs actually suck करता है, समझ में आ रहा है? वो pressure gradient की वजह से क्या होता है? Lungs that drawn that air into it. This kind of breathing pattern we call negative pressure breathing. Which one? Negative pressure breathing. Negative pressure breathing जो है, right? Due to that, हम जब खाना खा रहे हैं तब भी तो breathing करते हैं कि नहीं करते, या stop हो जाता है? अलग करते हैं ना, right? और बहुत ज्यादा बोलते हैं तब क्या हो जाता है? वो थोड़ा rest. हाँ. So that is sometimes actually, right? So due to the negative pressure breathing, right? Mammals है, reptiles है, birds है. Remember, mammals, reptiles and birds, ये तीनों में negative pressure breathing होता है कि lungs में always, lungs में negative pressure consider होता है. Which one? Negative, right? So due to that, it suck the blood. Negative है always. It suck what? Blood. Sorry, air. My mistake. It suck the air from the atmosphere, right? That's why at the same two processes we can do parallelly simultaneously, eating and breathing, right? Negative pressure है, that's why. But amphibians में ऐसा नहीं होता है. Amphibians का example frog. Other than that, salamander, bufo, ichthyophis, correct. Okay. So now in that case, listen. एम्फीबियंस में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ब्रीथिंग. विच वन? पॉजिटिव. उसमें यू नो बक्कल कैविटी हमने वो लर्न किया था, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जब एयर एंटर होता है इनटू बक्कल कैविटी टू दैट लैरिंजियोट्रेकियल चैम्बर एंड लंग्स, राइट? तो वो उसके नॉस्ट्रिल्स, आई टोल्ड यू, क्लोज कर देता है प्रेशर की वजह से, है ना? आप लिप्स को थोड़ा ऊपर ले जाओ, आपके नॉस्ट्रिल्स में हो रहा है ऐसा, है ना? सो सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो, दैट frog, yeah, amphibians, right? In that the nostrils get what? Closed and pressurize that air from the buccopharyngeal chamber or buccal cavity that pushed into lungs. That pushed into what?
lungs. वहां पे pushing method है. Which one? One is a pushing, other is a pulling. हम pulling करते हैं atmosphere. उसको क्या करना पड़ता है? Air first take enter and then push into the lungs. वो होता है positive breathing pattern जो amphibians में होता है. तो amphibians में दोनों प्रोसेस साथ में करना डिफिकल्ट है. Eating and breathing. Right? Eating and which one? Breathing. तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर ऑक्सीजन तो रुक जाएगा. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसीलिए ऑप्शन में दिया है. समझ में आया? यस और नो? है ना? जनरली फ्रॉग्स डू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्किन. राइट? उसको जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स जनरली ये है, राइट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी, तब जाके वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है. मेनली उसका स्किन है. अंडरस्टूड? फिर नेगेटिव ब्रीथिंग, देखिए इट्स अ वन काइंड ऑफ इवोल्यूशन. राइट? पॉजिटिव ब्रीथिंग से किस में कन्वर्ट हुआ? नेगेटिव ब्रीथिंग में. तो नाउ द बोथ द थिंग्स शुड बी व्हाट? सेपरेटेड. बिकॉज फ्रॉग के पास तो वो चैम्बर है, स्किन यूटिलाइज हो रहा है. रेप्टाइल से तो स्किन ही क्या हो गया? ड्राई, कॉर्निफाइड, स्केल, स्क्यूट्स, है ना? तो ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता, कंपल्सरी नॉस्ट्रिल्स टू एंटर होनी. राइट? सो दैट्स व्हाई रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स तीनों में क्या बना? नेगेटिव. उससे पहले था पॉजिटिव. क्लियर? अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? ओके, स्टॉप कर दो.